So, Second Peter chapter 2, this is speaking about, this chapter is mainly about false prophets. और ये जो अध्याय है इसमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में ज़्यादातर बात की गई है। So, it's very important for us to know about this. तो इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Okay, so chapter 1 of Second Peter, जो दूसरा पत्रस का पहला अध्याय में it spoke about true prophecy. जो सच्ची भविष्यवाणी है उसके बारे में बताया गया। The end verses, the verses from 16 to 21, we read the Apostle Peter is writing about the prophecy which the true prophets give. और हमने पहला पत्रस का नहीं दूसरा पत्रस का पहला अध्याय उसका 16 से 21 में देखा कि जो सच्ची जो भविष्यवाणी है, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता हैं, वो किस प्रकार के भविष्यवाणी देते हैं उसके बारे में हमने देखा। Yeah. So verse 1 of Second Peter 2 we'll read. तो हम जो दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। I hope all of us are referring to the Bibles. मुझे विश्वास है कि आप सब जो हैं अपने 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 बाइबल में उस वचन को पढ़ रहे हैं। As we go through the verses, it will become more clearer for us. तो जिस प्रकार से हम इसके इस वचनों पर हम ध्यान देंगे और उसे पढ़ेंगे तो ये जो है हमारे मन में और भी स्पष्ट हो जाएगा। If we just hear it as a message, we may forget some things. अगर हम इसको सिर्फ एक प्रचार के रूप में सुनेंगे तो हम इसको भूल भी सकते हैं। So verse 1 says, "But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing swift destruction upon themselves." जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिपाकर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। So what the Apostle Peter is saying is that false prophets also came up from the people. तो जो प्रेरित पत्रस हैं वो कह रहे हैं कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं वो जो हैं लोगों के बीच में से निकल आए। And then he says, just as also there will be false teachers among you. और उसी प्रकार से तुम्हारे बीच में भी ऐसे उपदेशक आएंगे। So this was the burden which the Apostle Paul also had, that in Ephesians he said that there will be people who will draw disciples after themselves. तो इसीलिए उनके दिल में ये बोझ था कि ऐसे लोग जो हैं शिष्यों के बीच में उभर आएंगे। So we'll just think about what a false prophet is. तो आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे होते हैं। So we'll read Deuteronomy chapter 18 verse 22. और हम जो है व्यवस्था विवरण 18 का Deuteronomy 18:22. 18 का 22वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 और उसका 22वां वचन। So it says, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come about or come true, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. व्यवस्था विवरण 18 का 22। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे
और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना. So this is one thing that we have to keep in mind, that when some prophets speak nowadays, New Testament prophecy is of course very different, but this prophecy which people say, this will happen, this will happen. It says if it doesn't happen, then the Lord has not spoken, but it is he is presumptuously he has made it up. तो यहाँ जो है कहा गया है कि जब भी कोई भविष्यवाणी करता है तो उसे परख कर देखना चाहिए कि क्या वो घटती है या नहीं. अगर वो नहीं घटी तो इसका ये मतलब है कि वो यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने अपने ही मन से कुछ रच लिया है और ऐसे ही बोल दिया है उसने अपने मन से. Yeah, so then that is one sign that is a person is a false prophet, when his prophecies does not come true. और जब भी ऐसा कोई कुछ कहता है, भविष्यवाणी है बोलकर, और जब वो घटता नहीं है, तो वो ये दर्शाता है कि वो एक झूठा भविष्यवक्ता है. And a false teacher is one who teaches. A false teacher is one who teaches something which is some made up things, not from the word of God, but something which is made up. और झूठे उपदेशक ऐसे होते हैं जो अपने ही मन से रची हुई कुछ बातें कहते रहते हैं और वो वचन में नहीं पाया जाता. So now this false prophets and false teachers, how some of their characteristics we can see. और झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे जो उपदेशक होते हैं उनके लक्षण क्या है वो हम अभी देखेंगे. So this is we need to know these which are written in the word of God for our protection. तो ये बातें जो है वचन में इसीलिए लिखी गई है कि हम उससे सुरक्षित रह पाए. Not this is the only thing which I want to say, that this is only for our protection that we need to know this. तो इन बातों को समझना हमारे जो है सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. So we'll read Jeremiah 6:13. और यिर्मयाह का पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन. Jeremiah 6:13. यिर्मयाह 6 का 13. So speaking about this, he says, from the least of them even to the greatest of them, everyone is greedy for gain. From the prophet even to the priest, everyone deals falsely. क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं. So one of the signs of false prophets and false teachers are that they are greedy for something, some gain in their life. तो ये हम देख पाएंगे कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता और उपदेशक होते हैं वो जो हैं किसी न किसी तरह से वो लाभ, अपना ही लाभ ढूंढते रहते हैं. And verse 14 says, और 14 वचन कहता है, they have healed the brokenness of my people superficially, saying peace, peace, but there is no peace. और 14 वचन में है, वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं. So their message is maybe very comforting, but it's a very superficial comfort. तो उसको सुनने से कुछ प्रकार की सांत्वना मिलती है, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी रूप से वो जो है सांत्वना होती है, वो गहराई से हमें छू नहीं पाती है. That comfort does not last, it is only temporary. जो सांत्वना है वो चिरस्थायी है, थोड़े समय के लिए है. Okay, now this verse is very, very important for us to, all of us to really know. That is 2 Corinthians 11:13.
और दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसका 13वां वचन, ये हम सब के लिए बहुत ही महत्व वाली वचन है। हम Second, सबको जानना है, बहुत ज़रूरी है। 2 Corinthians 11:13. दूसरा कुरिन्थी Sorry. Okay, the 11:13 we'll read and then 11:20 also. दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 13 और 20वां वचन। So 11:13 is, for such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। So these false apostles and false prophets, false teachers, their characteristic is clearly written on in verse 20. और जो झूठे प्रेरित हैं उनके जो लक्षण हैं वो 20वां वचन में लिखा गया है साफ साफ। And it'll be good if you want to underline it. It'll be good because it's good to remember this. तो इसको आप रेखांकित करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। It says, for you tolerate it if anyone enslaves you, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, anyone devours you, या खा जाता है, anyone takes advantage of you, या फंसा लेता है, anyone exalts himself, anyone hits you on the face. या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। So these false apostles, false prophets, false teachers, what they do as per this verse, they make... आज आवाज बहुत बारीक आ रही है। हाँ? सुन नहीं सकता है? सबको वैसे आ रही क्या? सुन सकता है? अब बहुत बारीक आवाज है, हाथ में फोन है तो भी सुनाई नहीं दे रहा है। What about others? सिस्टर, आपका फोन का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कर सकता है? ब्रदर का मैं वॉल्यूम मेरे लिए बराबर है, बाकी लोग। किरण, हिंदी कम है क्या? ब्रदर, इट्स ऑडिबल। ऑडिबल ना? सो सिस्टर, आपका फोन का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा करने के लिए ट्राई करो। So it says, if anyone tries to make you their slave. तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर कोई तुम्हें अपना दास बनाना चाहता है, how they will make the slave? They will not tell you to do some work and all that, but if people make us dependent on themselves, then we are like their slaves. तो इसका ये दास बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कुछ काम करवाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन अगर वो आप उन पर पूरी तरह से निर्भर रह जाते हो। That is that, for any decision that they have to be consulted. अगर कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। So when we are dependent on, that is not the right thing. तो अगर इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति पर भरोसा या किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़े तो ये ठीक बात नहीं है। And then anyone devours you, that means they take things from you, means maybe material things or maybe some they desire honor from you. या खा जाते हैं। खा जाने का मतलब है कि आपसे वो कुछ लेते हैं, आपसे वो सम्मान चाहते हैं या कुछ सामान लेना चाहते हैं, आदर चाहते हैं, and takes advantage of you. और इस प्रकार आपका लाभ उठाते हैं। So these are all the signs, and then it says, then the other thing is exalts himself. और अपने आप की महिमा करना। See, this is a big sign, that when a person exalts himself, it's a very dangerous sign. और अगर जब कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाता है तो ये एक बहुत ही हमें एक चेतावनी के रूप में हमें देखना चाहिए कि बहुत ही खतरनाक बात है ये। Will say that I'm a great prophet, I've done this thing, I've done that thing, I'm a great teacher, I know I have got a lot of revelation, and it's all about oneself which is projecting.
अगर वो कहता है कि मुझे बहुत ऐसे प्रकटीकरण मिली है और मैं सब कुछ जानता हूँ, और अपने आप को ही वो बढ़ाता है और अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, तब So the opposite of Jesus had the opposite life, and the Paul the apostle, all of them had very. They wanted to go humble, be humble, and further humble. तो हम यीशु और उनके शिष्यों का जीवन देखते हैं कि वो बहुत ही नम्र थे. So false prophets, false teachers, they make people dependent on themselves. जो झूठे जो प्रचारक होते हैं, झूठे भविष्य वक्ता होते हैं, वो लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं. True prophets and लेकिन true teachers will connect you to Jesus. लेकिन जो सच्चे भविष्य वक्ता हैं, सच्चे उपदेशक हैं, वो आपका जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, वो मजबूत करेगा. Because the new covenant says, all shall know me from the least to the greatest of them. क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, नई वाचा में, कि सब मुझे जानेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे And then the false prophet and false teachers, they want some gain from the people. और वो जो झूठे प्रचारक हैं, वो लोगों से कुछ ना कुछ वो लालच रखते हैं कि उन्हें कुछ उनसे मिलेगा, लाभ मिलेगा. It can be some material gain. वो कुछ जो सांसारिक बातें हो सकती हैं. They can make people to do some work for them. वो लोगों से कुछ काम करवा सकते हैं अपने लिए. Okay? Because they are when a leader is there, then people are ready to do anything. क्योंकि जब कोई एक महान व्यक्ति होता है, तो उसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. So that means they can take advantage of people. तो वो क्या है, दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं. And that gain can be material or it can be honor also. और वो सिर्फ एक शारीरिक रूप में ही नहीं, लेकिन वो सम्मान के रूप में या आदर के रूप में भी हो सकता है. That whenever they come, people have to respect them. They want the respect of people. All these things are they want the gain. तो जब भी वो आते हैं तो लोग उन्हें आदर दे, सम्मान दे, और ऐसा उनका मन ऐसे होते हैं. So brothers and sisters, when I'm saying this, we can become this false teacher and false prophets. तो जब मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो वो ये भी दर्शाता है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं. Okay, if we try to take advantage of people and we exalt ourselves and we want some gain, we can be that with such people. तो अगर हम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और लोगों से कुछ चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे. So Jesus said in Matthew 7:15 that they come in sheep's clothing. और मसीह ने Matthew 7:15 7:15 में कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में से फाड़ने वाले भेड़िए हैं. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. They will not come as a wolf. They will come as a sheep, meaning they will be talking. They will be talking about Jesus. They will be talking all the right things. तो वो जो हैं, वो भेड़िए के रूप में नहीं आएंगे, वो भेड़ों के समान बनकर आएंगे. इसका ये मतलब है कि वो यीशु मसीह के बारे में बातें करेंगे, समझाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य और कुछ है. But inwardly they are ravenous wolves, and they are waiting to cause harm to you. तो अंदर से उनकी जो मनसा है वो ऐसी होती है कि वो लोगों को फाड़ डालना या उनका नाश करना चाहते हैं. And then how they bring their teaching is not
openly but very secretly. और वो अपनी जो उपदेश है वो किस प्रकार से लेके आते हैं, वो खुले रूप से नहीं लेकिन छिप के वो ऐसे जो उपदेश हैं वो लेकर आते हैं. So when you want to introduce a wrong teaching or something which is not actually from God, they don't do it openly, because then people will find this. They'll be able to make out, but they will do it secretly. तो जब भी वो कुछ ऐसे उपदेश लाना चाहते हैं लोगों के बीच में, तो वो खुले रूप से नहीं लाएंगे, क्योंकि तब लोग समझ जाएंगे कि ये तो गलत है. तो वो छिप के ऐसे उपदेश लेकर आते हैं. So they will bring error or false teaching by the side of true doctrine. और जो वो गलत या झूठा जो उपदेश लेकर आते हैं, वो जो सच्चा उपदेश उसके साथ साथ उसे मिलाकर वो लेकर आएंगे. So we'll read Jude 4. हम यहूदा का 4 वचन पढ़ेंगे. Jude 4. So Jude 4 says, "For certain persons have crept in unnoticed, those who were long before marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ." यहूदा का 4 वचन, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था. ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं. So brothers and sisters, all of us, for all of us there is a word when we, for us to practice as well as when we share, there is a very good word for us. तो जब भी हमें भाइयों बहनों, जब हमें कुछ वचन बांटना होता है, तो एक वचन है जो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक होगा. See, we all share, sometimes we testify, and when we do so many things, one thing to keep in mind is this one. तो और वो वचन ये है जो हम जब भी हम कुछ बांटते हैं या प्रचार करते हैं, तो ये हमें मन में रखना चाहिए. And it is especially important for those who preach the word of God. और सबसे जो महत्वपूर्ण वो जो है, वो उन लोगों के लिए है जो वचन का प्रचार करते हैं. 1 Thessalonians chapter 2 verse 3. पहला थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय और 3 वचन. The Apostle Paul is saying, "For our exhortation does not come from error or impurity or by way of deceit." क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है. And then it says, what is this error? Without error and deceit, what is that exhortation? तो जो उपदेश बिना भ्रम के और अशुद्धता ये और छल के साथ, वो किस प्रकार का उपदेश है? When we read 2 Corinthians chapter 4 verse 2, और इसके बारे में हम 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय verse 2 और 2 वचन में पढ़ सकते हैं. 2 कुरिन्थी 4 का 2 वचन. It says, "But we have renounced the things hidden because of shame, not walking in craftiness or adulterating the word of God, but by manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God." 2 कुरिन्थी 4 का 2 वचन. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं. So one important thing is not adulterating the word of God. और बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात जो है कि हम
वचन में मिलावट ना करें. We know when milk is adulterated or anything else is petrol is adulterated, we know there is a mixture. तो जब भी हम जैसे दूध में पानी मिलाते हैं या पेट्रोल में कुछ मिला देते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें मिलावट है. Similarly, the word of God should not be mixed with our own thoughts and anything which is other than the pure word of God. तो इसीलिए बहुत ही महत्व है इस बात पर कि हम जो हैं वचन को अपने ही विचारों से उसे उसका मिलावट ना करें. Another place it says handling the word of God accurately. और दूसरी एक जगह में ऐसे कहा गया है कि वचन को जो ठीक तरह से उसे बांटे. So all of us who share the word of God and all of us should have a godly fear that we should not try to change the word of God according to our reasoning or according to our what we believe. तो इस बात पर हम जो वचन बांटते हैं प्रचार करते हैं हमें जो है इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम वचन को अपने ही इच्छा के अनुसार उसे ना बदलें और उसमें और बातें ना जोड़ें जो हमारी इच्छा के अनुसार है जिसे हम जो हमें अच्छा लगता है और ना अच्छा लगता है. Another verse is Galatians 1:7. गलातियों का पहला अध्याय और उसका 7वां वचन. It says, not distorting the gospel of Christ. परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं. So we should not distort, we should not change the word of God. तो सुसमाचार को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए. Another thing is 2 Corinthians 2:17. और दूसरी बात है दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय और 17वां वचन. For we are not like many peddling the word of God, but as from sincerity, as from God, we speak in Christ in the sight of God. क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं. That means using the word of God, we should not try to gain some honor or something like that. तो हमें परमेश्वर का जो वचन है उसका प्रयोग इस चीज के लिए नहीं करना चाहिए कि हमें उससे कुछ लाभ मिले. Yeah. So we should be dependent on God for a word of prophecy, but not wanting with this word of God trying to get some honor for us. तो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए कि हमें उनसे बांटने के लिए कुछ वचन मिले लेकिन हम अपने ही लाभ के लिए इसका उपयोग ना करें. This is what false teachers and false prophets do. तो ये बात जो है जो झूठे भविष्यद्वक्ता और प्रचारक करते हैं. Verse 2 Peter chapter 2 verse 2. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन. Many will follow their sensuality, and because of them, the way of the truth will be maligned. बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी. So the result of false doctrines is that people's lives become very loose and they will be easily tempted with earthly things and sensual and all sorts of even immoral things. तो इस प्रकार के उपदेश का असर यह होता है कि जो हैं लोग हैं जो लुचपन करने लगेंगे. इसका मतलब वो कामुकता और जो जैसे हमारे जो इंद्रियां हैं उनसे जो हमें आनंद मिलती है जो शारीरिक सुख हमें मिलता है उसके प्रति हमारा झुकाव जो है वो बढ़ जाएगा. So the unbelievers will look at the way we live
and uh, they will say, the lives are so bad. तो जो अविश्वासी लोग हैं वो हमारे जो जीवन को देखेंगे और वो बोलेंगे कि इनका जो बर्ताव है वो बहुत ही बुरा है. True prophecy and true teaching, true teachers of God's word will be able to produce, will be able to speak the word so that the life of people also will change. तो जो सच्चे प्रचारक हैं, जो सच्चे भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, वो उनकी जो उपदेश से लोगों का जीवन जो है वो बदल जाएगा, उन्हें परिवर्तन हो आएगा. So there is a sort of a saying that your life may be the only Bible some people may read. तो ऐसी कहावत भी है कि शायद जो तुम्हारा जीवन है वो एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो सिर्फ वही एक पवित्र शास्त्र है जो बहुत सारे लोग पढ़ पाएंगे. The Apostle Peter said, "Keep your behavior excellent among the Gentiles." और उसे Peter. प्रेरित पतरस ने कहा कि अपना जीवन जो है अविश्वासियों के बीच में एक उत्तम जीवन उत्तम रूप में बिताओ. So brothers and sisters, verse 1 again we just look at this. I just wanted to say something on verse 1. और जो दूसरा अध्याय का जो पहला वचन है उसके बारे में मैं और कुछ कहना चाहता हूँ. It says false teachers will secretly introduce destructive heresies. तो यहाँ कहा गया है कि झूठे भविष्यद्वक्ता हैं जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे. And the present time is a time when so many of the false teaching is coming up. और वर्तमान काल में हम इसको साफ रूप से देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर बाहर आ रही है. I will tell at this meeting. I will tell about one, but there are more that I need to tell. But I'll tell later on. मैं एक के बारे में बताऊंगा आज, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. Yeah, the false teachings are increasing now. और आजकल जो ऐसे गलत या झूठे जो उपदेश हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. Okay, one of them is like this. और एक इस प्रकार का उपदेश है. The teaching is that Jesus has died for our past sins, our present sins, and our future sins. और वो उपदेश ऐसा है, कहता है कि यीशु मसीह जो हमारे बीते हुए पाप और वर्तमान और भविष्य में हम जो पाप करने वाले हैं उन सब के लिए यीशु मारे गए. So when we have come to Jesus Christ, He has forgiven us of our past, present and future also. और जब हम मसीह में आते हैं तो उन्होंने हमारे जो बीते हुए और जो वर्तमान और भविष्य में होने वाले पापों को उन्होंने क्षमा किया है. So we don't need to confess our sin to God. तो इसीलिए हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम अपना पाप जो अभी हम करते हैं उसे हम मान लें. Because He has forgiven even the future sins. क्योंकि भविष्य में जो हम करने वाले हैं उसे भी उन्होंने हमें क्षमा किया है. So there is no need of confessing any sins. तो इसीलिए अपना पाप मानना ज़रूरी नहीं है. Okay, so this is the teaching which very popular TV preachers preach. ये बहुत ही प्रचलित है ये जो उपदेश और लोगों में बहुत प्रसिद्ध है. So they say that if you fall into some sin, तो इसीलिए वो कहते हैं अगर आप किसी पाप में गिर जाते हो, say you have spoken something badly towards people or got angry, अगर आपने किसी के बारे में कुछ बुरा बोला है और गुस्सा किया है, क्रोधित हुए हैं, you have done something which is wrong.
तो आपने कुछ गलत किया है। In other words, you have fallen. तो इसका ये मतलब है कि आप गिर गए। What you must do is get up, just dust the things out and continue to walk. और आप गिरे हैं इसलिए आप उठें और अपने कपड़े को झाड़ दें और फिर से चलें। No need of asking for forgiveness because it is already forgiven. और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Okay, but what about sins? Sins are of all types. लेकिन पाप तो कई प्रकार के होते हैं। Suppose you have fallen into lust and adultery. अगर आप कुछ ऐसे व्यभिचार या ऐसे बातों में गिर गए हो, So you have to, you fall down, you just get up, dust yourself, and can you walk like that? अगर आप ऐसे पाप में गिरे हैं और क्या आप सिर्फ उठकर अपने आप को झाड़कर ऐसे चल सकेंगे? Does the Bible teach that? क्या वचन ऐसे सिखाता है? Bible has put one person out in Corinth out of the separated him so till he repented. और हमने कुरिन्थ में देखा है कि ऐसे व्यक्ति को कलीसिया के बाहर निकाला गया जब तक वो अपना पाप ना माने। And what they say is that 1 John 1:9, hope everybody knows this one, 1 John 1:9. और वो ऐसा कहते हैं जो पहला यूहन्ना पहला अध्याय का जो 9वां वचन है। We'll read 1 John 1:9. Let us all, all of us should know this verse, but they say, I'll tell you what they say. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So, the Apostle John is writing, including himself, if we confess our sins. तो जो प्रेरित यूहन्ना है वो अपने आप को भी इसी में शामिल करते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं यदि हम। So this is the verse which brings us tremendous help and closeness to God. तो ये एक ऐसा वचन है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। Because our sin is, we confess it and the blood of Jesus cleanses it. क्योंकि हम अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें साफ करके शुद्ध करता है। God wants us to live in victory, but we fall sometimes in sin, but then we repent. We say, Lord, I'm sorry, I don't want to do it. Please forgive me and cleanse me. And the Lord cleanses us and we are in fellowship with God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जयवंत बने रहें, लेकिन कई बार हम गिर जाते हैं। तब हम अपने पापों को मानकर हम पाप की क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और तो तब वो हमें अपने अधर्म से शुद्ध करके हमें विश्वास योग्य और धर्मी बनाते हैं। So these teachers who say this say that 1 John chapter 1 was written to unbelievers. तो जो लोग ऐसा उपदेश देते हैं वो बताते हैं कि पहला यूहन्ना का पहला अध्याय जो है वो अविश्वासियों के लिए लिखा गया था। It was not written to believers. ये विश्वासियों के था। So that is their explanation. तो इस प्रकार से वो स्पष्टीकरण So देते हैं। this is the way people distort the word of God. तो इस प्रकार से वो वचन को बिगाड़ते हैं। Brothers and sisters, this is just one I'm saying. तो भाइयों बहनों ये सिर्फ एक ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। But you find that all godly preachers, all godly people who follow the Lord don't believe this. लेकिन जो भक्तिमय जो लोग होते हैं वो इन बातों का मनन नहीं करते हैं। So this is just one. There are others, and maybe I don't know. In our private discussions, in group discussions, we can just talk about it. But we have to be very careful. And brothers and sisters, to be free from deception and to make out this, we have to walk faithfully with God. और अगर हम ऐसे धोखे से और बहकावे में आने से अगर
अगर हमें बचकर रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नज़दीक उनके साथ साथ चलें। And we must know the word of God. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना चाहिए। All of us should read the word of God and obey the word of God, then we will be protected. हमें वचन पढ़ना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, तब हम इन सब बातों से बचे रहेंगे। Then we will get spiritual discernment. तो हमें जो है एक आत्मिक रूप से देखने का जो वो अनुग्रह हमें मिलेगा। And whenever something is wrong, we will feel uncomfortable about it. और जब भी कुछ गलत ऐसे सीख आते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस होगा जिससे हम अपनी जो शांति है उसे हम खो बैठे। So just because people speak about Jesus, just because people take the word of God, it does not mean everything can be right. तो लोग अगर यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे हैं और अगर वो वचन से कुछ बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब बातें जो वो बोल रहे हैं वो उनमें सच्चाई है। As we walk with God and there is a pure spirit within us, we'll be able to detect something which is wrong. अगर हम मसीह के साथ साथ चलेंगे और हमारे अंदर एक शुद्ध आत्मा रहेगी तो हम इन बातों को परख कर हम समझ पाएंगे। So we'll continue from verse 3 next time. और अगली बार हम तीसरी वचन से हम जो अध्ययन है वो जारी रखेंगे।